ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਜੀ ਕਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਰਹਾਉ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ, ਪਤਿਤ ਪਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਸਦ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਬਹੁਰ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਹਰ ਰਸ ਤਿਨਹੀ ਜਾਤਾ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਘੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ 5ਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਛੱਡੋ ਮਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹੋ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਉਸ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
और ये मर्यादा समाजिक मर्यादा है। सो जिथे गुरु की मर्यादा का पालन करना है, इस दे नाल गुरसिख ने समाजिक मर्यादा का भी पालन करना है। पर यह नहीं है कि समाजिक मर्यादा ही केवल साडी रह जाए, गुरु की मर्यादा पासे हो जाए। सो इस गल तो सानू महाराज ने सावधान किया है। चढ़नी लाउण नूं लड़ लाउणा भी कहते हैं। असीं कह दिंदे हां इस बच्चे नूं अपने लड़ ला लो, उन्होंने कोई सिक्ख्या देनी होवे जां दवाउणी होवे तां कहंदे हां लो जी इहनूं अपने लड़ ला लो जां चरनी ला लो। एक आम शब्द है। भाव इसनूं हुण तुसीं अपना बना के अपना बना लो ते इसनूं ऐ सिक्ख्या दिओ। सो जे इतिहास वाल झाती मारीए तां भाई मरदाना जी जिन्हां दा नाम उन्हां दी माता ने मर जाना रखिया सी। भाई मरदाना जी 10 साल वड्डे सन गुरु नानक पातशाह तो। राय भोए की तलवंडी विच इन्हां दा जन्म होया सी, पर मां ने इन्हां दा नाम मर जाना रख लिया। गुरु नानक पातशाह नाल मिलाप होया। गुरु नानक पातशाह ने पूछया तुहाडा नाम की है? तो कहने लगे, मरदाना जी कहने लगे मेरा नाम तो मर जाना मेरी मां ने रखा है। पूछया क्यों? कहते जी इस गल का तो मैंने पता नहीं है, माता नूं पुछ सकते हो। माता नूं पुछया तो मां ने दस्या कि मेरे घर 6 बच्चे पैदा हुए वार वार और 6 ही मर गए। जदों इसका 7वें बच्चे का जन्म होया तो मैं यही सोचा कि इन्हें भी मारी जाना है, इस करके ना ही मैं मर जाना रखा। गुरु नानक पातशाह ने उस वेले ही माता मरदाना जी की माता नूं कहा कि नहीं ये मर जाना नहीं, ਇਹਦਾ नाम मरदाना है, ये तो सदा ही रहेगा। अजिहा ही होया। देखो अपने चरणों नाल जोड़ लिया, मरदाना जी नूं अपना बना लिया। अखीरले श्वासां तक मरदाना जी दे नाल रहे और अंतिम संस्कार भी मरदाना जी का गुरु नानक पातशाह ने आप अपने हथीं किया। यह है सदा लई। हुण नाल ये भी गल इतिहास में आउंदी है कि जिथे गुरु नानक पातशाह का नाम आवेगा उत्थे मरदाना जी का नाम जरूर आता है। इसका मतलब गुरु नानक पातशाह वांग मरदाना जी भी अमर हो गए। चढ़नी ला लिया, अपना बना लिया। फिर भाई लहणा जी नूं अपने लड़ ला लिया, चढ़नी ला लिया। बाबा बुढ़ा जी नूं अपने लड़ ला लिया। बालक अवस्था में सन बाबा बुढ़ा जी, और बाबा बुढ़ा जी 6वें गुरु साहिबान तक रहे और 6 गुरु साहिबान उन्होंने तिलक लाया है। गुरु नानक पातशाह ने हुक्म दिता कि जिन्ना चिर तुहाडा शरीर है उन्ना चिर तुसीं ये गुरु घर के सेवा करनी है। और गुरु नानक पातशाह के जिन्ने भी गुरु साहिबान बाद च होए वो बाबा जी की सलाह के नाल सारे काम करते सन। गुरु हरगोबिंद साहिब जी तक, गुरु हरगोबिंद साहिब जी भी बाबा जी को नमस्कार करते सन, वड्डे जान करके। सो बाबा जी का नाम प्रगट हो गया। दूसरे पासे लहणे नूं लड़ लाया। लहणे नूं गुरु अंगद बना के उसनूं भी प्रगट कर दिता। ये इतिहास है। बाबा अमरदास जी आए बजुर्ग, तीर्थां की यात्रा करते सन। अपना घोड़ी ते समान लद के पिंडां में जाके वेच के आया करते सन। ये गुजारा सी उन्हां दा, किरत उन्हां दी सी। समा आया, गुरु अंगद देव जी के चरणों में हाजिर हो गए। गुरु अंगद देव जी ने तुरट के उन्होंने अपने चरणों नाल जोड़ लिया
सेवा दी सिमरन दी दात बख्शिश की और सदा वास्ते ही अपना बना लिया और जगत में प्रगट कर दिता। जिसनों खडूर की जलाही ने किसी वेले कहा सी नथावा है, इसका कोई थां ठिकाना नहीं है, इत्थे आ कुड़मा का पानी ढो रहा है, उसनों गुरु अंगद देव पातशाह ने बारंबार बख्शिश की कि नथावा नहीं है, ये तो नथावे का थां है, ये तो नमाणिया का मान है, ये तो नियोटिया की ओठ है, ये तो नियासरिया का आसरा है, ये नकत्तियां की गत है, ये नपत्तियां की पत है, ये नितिरियां की तिर है। इन्ना त्रुठे महाराज, इन्ना त्रुठे और जगत विच प्रगट हुए। ये गुरु घर की मर्यादा है। सो इस तरह ही इतिहास सारा ही। सो जिसनों गुरु अपने चरणों के नाल जोड़ लेंदा, अपना बना लेंदा है, हर संग सहाई पाया। की हुंदा है कि वाहिगुरु परमेश्वर उसदे सदा ही अंग संग रहिंदा है। जे गुरु अंग संग रहेगा तो गुरु ते परमेश्वर एक ही हैं। सतगुरु विच आप रखे न कर प्रगट आग सुनाया। वाहिगुरु किथे है? गुरु दे विच अपने आप नूं टिका के अपने आप नूं प्रगट कीता है। इसने गुरु दे रूप विच प्रगट है। जो जिथे गुरु है उत्थे वाहिगुरु है। इस करके सानू उपदेश ये है, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं एक गुरु सिखा, गुरु गुरु जपया कर, गुरु की वाह वाह करया कर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ तेरा भला हो जाएगा। कोई रब नूं कोई वखरा ना समझी, गुर परमेश्वर एक हो जान, गुरु ते परमेश्वर एक ही समझिया कर। हर संग सहाय पर जै जाइए तहां सुहेले, कर कृपा प्रभ मिले। अज ये जो गुरु ने अपने चरणों नाल जोड़ लाए, जिथे भी जाते हैं उत्थे ही आनंद विच रहिंदे हैं, सुखी रहिंदे हैं। गल जुड़न दी है। देखो एक तो है गुरु ने जोड़ना है, तो जे साडा मन नहीं करता जुड़न, फिर गुरु की करेगा। जे सिख विच ही चूक होवेगी तो गुरु भी पूरा की करेगा। कबीर जी ने वचन वरत्या है कि जे बांस की पोरी फूक मारो तो अगे निकल जाती है, तो जे सिख का जीवन ही बांस की पोरी वर्गा होवे, विचों खोखला होवे, गुरु की आवाज़ जी आवाज़ रूपी फूक उस वजे तो गांह की गांह निकल जाए, गुरु की करेगा। इस करके भावना गुरसिख के अंदर भी होवे, दोवां के अंदर भावना होनी चाहिए। जे गुरु ना लाना चाहे चढ़नी, फिर गुरसिख भी नहीं लग सकता। इस करके ये जिस दे उत्ते भी गुरु कृपा करके त्रुट के अपना बना लेंदा है, तो जिहड़ा मन करके गुरु का बन जाता है। मारे कहते जिथे भी हुंदा है, जिथे भी जाता है, उत्थे ही सुखी है, आनंद विच है, कोई चिंता नहीं। क्यों? पता है कि मेरा गुरु मेरे नाल है, मैनूं काहदी चिंता है। जे माँ प्यो कोल होण, जे बच्चे दे सिर ते माँ प्यो का हाथ होवे, बच्चा निश्चिंत रहिंदा है। तो जदों बच्चा ये सोचण लग पे कि नहीं हुण तां मैं सियाणा हो गया, माँ प्यो की लोड़ ही नहीं है, माँ प्यो उस वे पिछे हो जाते थोड़ा, भावें दिलों तो नहीं होंगे, लेकिन उसकी एक आदत वेख के पिछे होंगे हैं। तो बच्चे नूं वार वार फिर मुसीबतों का सामना करना पैंदा है। तो अखीर समा वो भी आता है, फिर माँ प्यो के चरणों से टिकना पैंदा है कि मेरे तो बिना होर कोई नहीं है, तुहाडे तो बिना कोई नहीं है। सो इस तरह ही गुरु के नाल कर कृपा प्रभ मिले। गुरु के नाल मलाप भी परमेश्वर की कृपा नाल हुंदा है। महाराज क्या पूर्व का चंगा कर्म किया होवे असीं तां ऐस जन्म दे विच, मनुखा जन्म दे विच गुरु के नेड़े हो सकते हैं। किन्नी दुनिया वाहिगुरु ने पैदा की है, इन्नी दुनिया दे विच किन्ने के गुरु के नेड़े हैं, ये आप अंदाजा ला सकते हैं। जिहड़े नेड़े हैं उन्होंने कर्म यहो जिहे हैं। देखो कोई देवी नूं पूज रहा है, कोई देवते नूं पूज रहा है, कोई पिपड़ नूं पूज रहा है, कोई बोड़ नूं पूज रहा है, कोई किसी होर चीज़ नूं पूज रहा है, सप्पां नूं पूज रहे हैं लोग, वो भी तो पूजा कर रहे हैं। कोई तीर्थां ते ही तुरया फिरदा है,
पर पूरे गुरु की शरण में आके गुरु के उपदेश को मनने वाला वो बिरला है बिरले ना ही घने फैल पकड़ संसार। थोड़े हैं ना, बाकी तो लोग एवं ही नाम तरीक सिख बने हैं, बाहरों दिसण ऐ जापदा है बड़े बड़े सिख हैं, अपने आप को समझना जी बड़े बड़े सिख हैं, पर यह भुलेखा है। पर असल विच अंदरों नहीं है, समर्पण नहीं है। जिन्ना चिर गुरु को समर्पण नहीं होगा उन्ना चिर कामयाबी भी नहीं है। हर गुण गावो सदा सो पाई, हे प्यारिओ प्रेम दे नाल परमेश्वर के गुण गाया करो। एक तो आप कल्ले भी गा सकते हैं सवेरे उठ के, फिर संगत में आके। कल सुन रहे परसों आप कि संगत में हरी कीर्ति करनी, रब का जस करना, गुरु का जस करना, यदा ज़्यादा लाभ है। दास ने कई बार बेनती की है संगत के कि देखो आप पढ़ते रोज एक दूजी को लाखों हैं लख 20 लख लख कीड़ा आखे हैं एक नाम जगदीश, ये तरह है पद पौड़ियाँ चढ़िए हुए किस। ये पौड़ी है वाहिगुरु नाल एकमिक होने दी, गुरु परमेश्वर नाल एकमिक होने दी पौड़ी है। तरीक पौड़ी तो नहीं चढ़ांगे ना, सुधा नहीं छाल मार के उत्ते चढ़ जाते किसी मकान के उत्ते, पौड़ी का सहारा लेना पैंदा है। सो ये की है, रसना नाल नाम जपो। किन्नियां गजीबां होण, कहते 2 हो जाण, 10 हो जाण, 20 हो जाण, लखां हो जाण, तो फिर लखां वारी लख लख गेड़ा के लखां वारी वाहिगुरू वाहिगुरू करिए तां गल बनदी है। हुण जीवता एक है, 10 कित्थों हो जाणगीਆਂ, 20 कित्थों हो जाणगीਆਂ, 20 लाख कित्थों हो जाणगीਆਂ। बंदा वध तों वध जे नाम जपण वास्ते बैठे भी घंटा 2 घंटे जपेगा शरीर थक जाएगा। हुण लख लख गेड़ा कि हमारे लखां गेड़े आपको इहदे नाल किवें करिए महाराज, ये सानू तुसीं आंदे इन्ना फल है। फिर ਉਹਦਾ तरीका महाराज ने सत्संग दस्सिया। सत्संग दे विच आपां बैठ के, सत्संग दे जदों आपां मिल के एक जना आपां एक शब्द पढ़ रहा है, गायन कर रहा है जां वाहिगुरू का जाप करा रहा है, आपां सारे उसके नाल जाप कर रहे हैं। फर्ज करो 50 शरीर हैं संगत च बैठे है। एक जाने ने एक बारी कहा, एक जीवन ने एक बारी कहा था, जो ने एक बारी कहा बाकी 49 जाने उसके नाल होर लग गए। यदा मतलब एक जाने ने 50 बारी कह लिया, 50 जाने ने जो एक बारी कहता है 50 बारी कह दिता। हुण 50 जने बैठे हैं तो 50 रसना हो गई, हर एक दी रसना नाल 49 लग गई। सो इहदा मतलब की होया कि 50 नाल गुणा कर दिओ 2500 आ जाता है। संगत में जे 50 बैठे हो ना गुरु के प्यारे, 50 मिल के वाहिगुरू एक बारी कहने तो वो हर एक जिन्ने बैठे हैं उन्होंने सारियां नूं ही 2500 वार कहने का फल है। ये संगत का गुण बहुत अधिकारी, महाराज ने कहा संगत का गुण बड़ा बड़ा है। इस करके सानू मिल के गायन करना, मिल के पीण का अमृत पीण का मिल के गाना। ये नहीं कला रागी गाई जाता है कि ना समझ आती है शब्द की ना होर जां इहो जिहियां सुरां जिहदे ते ना कोई नाल बोल ही सकता है। आप गाउणा नाल संगत नूं भी गवाउणा, ये एक चंगे कीर्तनिया की निशानी है। सो मारे कहते कि हे गुरु के प्यारिओ, संगति रूप मिल के हरि दे गुण गाया करो, मन चिंते सगले फल पावो जी कै संसार। की होएगा गुण गाउण दे नाल तुहानूं मन चिंते फल मिलणगे, तुहाडीआं जो इच्छावां हन जो भावनावां हन वो पूरीआं होणगीआं। देखो जदों इच्छा कदों पूरी होंदी है जदों साडा मन एकाग्र होंदा है, जदों मन का सीधा संबंध गुरु के नाल जुड़ जाता है, शब्द नाल गुरु नाल शब्द नाल जुड़ जाता है, उस वेले जो साडे मन विच हुंदा है पूरा हो जाता है। उस वेले तुसीं
सारा दिन सोचा सोचते रहो भी आ इच्छा पूरी हो जाए। जे गुरु नाल ही नहीं कनैक्शन जुड़िया तो कुछ नहीं बनना। यही कारण है कि लोग थां के उत्ते तुरे फिरते हैं, कभी उत्थे चले गए और सारी उम्र लंघ जाती है। फिर उस तरह दी इच्छावां अधूरियां ही रहिंदियां हैं, तो संसार तो चले जाते हैं। उसका कारण नहीं। सो इस करके मन गुरु के नाल जोड़ना, शब्द नाल जोड़ना। मतलब जब अरदास भी की है, अरदास ही है ना, आप करते हैं सारे मिल के भी करते हैं। जे अरदास करने वाला ही एकाग्र ना हो तो संगत कितों एकाग्र हो जाएगी। तो जे संगत ही एकाग्र नहीं है, अरदासिया भी एकाग्र नहीं है, तो फिर दसो सुनी किवें जाएगी। इसका मतलब सब तो जरूरी है मन की हजूरी। सब तो पहली सिक्ख्या गुरु नानक पातशाह ने यही दी सी नवाब नूं ते उथों दे मौलवी नूं कि नमाज तां पढ़ी सफली हुंदी है। सुल्तानपुर महाराज ने समझाया सी, तां पढ़ी सफली हुंदी है जे मन हाजिर रहे। ते जे अरदासीए दा ते अरदास करन वाले दा मन किते दा किते उठदा फिरदा है, घर च बैठा है, रिश्तेदारों को बैठा है, दोस्तों मित्रों को बैठा है, जान उस वे काम याद आने लग पे हैं। यदा मतलब गैर हाजिर हो गया ना, जो गैर हाजिर है उसकी कितना हाजिरी लग जाएगी। इस करके प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र। शरीर सावधान था, ये नहीं कहने कि जे होके कंधे नाल लग के ठीक है शरीर नहीं स्वस्थ तो वो वक्री गल है। ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ भी लाए हुए हैं, चलो कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ नहीं बैठ सकते थले, वो बेंच से बैठ। पर बेंच से बैठे होया इधर ਨੂੰ ਵੇਖੀ गए, इधर ਨੂੰ ਵੇਖੀ गए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फिर नहीं कुछ बनेगा। जिन्ना चिर गुरु के कोल बैठना है उन्ना चिर सब कुछ भुलो, केवल गुरु वाल ध्यान। पंचा का गुर एक, पंच गुरमुख गुरु के प्यार उन्होंने ध्यान का केंद्र केवल गुरु होंदा है। तो वो जो गुरु ही ध्यान जोड़ के रखते हैं, तो जो सोचते हैं वो हो ही जाता, सुते सिद्धि हो जाता, अपने आप ही हो जाता है। गुरमुखां नूं अरदास भी करने की लोड़ नहीं पैंदी, अरदास भी साडे वर्गियां नूं करने की लोड़ पैंदी। वो तो जो सोचते हैं वो ही हो जाता अपने आप। मन चिंते सगले फल पावो जी का संग सहाय। हे प्यारिओ तुसी जे गुण गाउंदे रहोगे ना, तुहाडे जेड़े दा तुहाडी जिंद दा सहारा गुरु बन जाएगा। महाराज पहला कहता जय जाइए तहस वेले, जे नाल होवे साडा मालक ते फिर सानूं चिंता कोई नहीं, फिक्र नहीं है। नारायण प्राण आधारा हम संत जना हरे नारायण। वाहिगुरु परमेश्वर जो साडे प्राणा का आसरा है। वाहिगुरु परमेश्वर, परमेश्वर की है जोत है, रब्बी जोत है जो घट घट दे व्याप रही है। जिवें सूरज दीयां किरणां पसरियां हुई हैं, पसरिओ आप होए अंत तरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म। अनेकां ही तरंगां दे रूप विच सूरज दीयां किरणां वांग वाहिगुरु ने अपने आप का विस्तार किया है। सारी सृष्टि में सारे तां मारे लिखा सब में जोत जोत, सारे दे ओही जोत, ओही किरणां जिहड़ियां हन हर एक दे अंदर प्रकाश कर रही हैं। लेकिन वाहिगुरु परमेश्वर रूपी सूरज जो एक है, वो अटल है, सदा रहने वाला है, जो साडे प्राणा का आसरा है, जिस दे सहारे नाल साडे अंदर स्वास चल रहे हैं। जदों सहारा मुक जाता है कहते बस हुणे पूरा हो गया, खत्म हो गई खेल इसकी। सो वो साडे जो प्राणा का आसरा है, उस दे प्यार विच जिहड़े भिजे हुए हैं संत जन। संत कौन हैं? जिहड़े हर वेले उसकी याद में जुड़े रहते हैं। कपड़े नहीं संत,
संत जीवन है, जिसने गुरु के शब्द नाल अपने मन वस विच कर लिया है। मन वस विच है तो फिर विकार नहीं हावी होणगे, दुनियादारी का कोई असर नहीं होगा। दुनिया की कह गई मैं ये उन्ना चिर है जिन्ना चिर साडा मन वस विच नहीं है। जे मन वस विच आ जाए मन जीता, जे तुहाडा मन वस विच आ जाए तो सारी दुनिया तुहाडे अधीन हो जाएगी, सारी दुनिया तुहाडी सलाह लवेगी। मुश्किल ये है कि वस च नहीं आता। मारे कहते कि रब दे प्यारे जिहड़े संत जन हैं, हम संत जना हरे नारा मैं तेरे प्यारियां दी वाहिगुरू परमेश्वर जो प्राणा दा आसरा है सकियां दा, उस दे प्यारियां दे चरणां दी धूड़ बनदा हां। धूड़ बनना एक है ना, धूड़ मंगनी, साधना की मांगो धूड़ पार ब्रह्म शरदा गुर, ये मंगनी है। एक धूड़ ही बन जाना, मोको कर संतन की धूरे। रोज पढ़ते हैं अंतरजामी पुरख बधाते शरदा मन की पूरे, नानक दास ये है सुख मंगा मोको कर संतन। तेरे प्यारियां दे चरणों की धूड़ ही मेरा मन बन जाए। मन ने बनना है, मन नूं बनाउण दी लोड़ है, शरीर करके नहीं, मन करके। पत पनीत कर लीने का कृपा हर जस दीने। फायदा की है संतां दी संगत करन दा? हमारे कहते कि पापियां नाल भी जीवन पवित्र हो जाता है। विधि चंद देखो, चोरियां कर रहा सी, महाराज जी शरण में आ गया। संत शब्द गुरु महाराज जी वास्ते वरत्या गया, उन्होंने शरण में आ गया, जीवन बदल गया। विधि चंद शीना गुरु का सीना, महाराज ने यह वचन कहा, तू तो मेरा दिल है। विधि चंद देखो कितने विचार, गुरु समर्थ है। सज्जन ठग का जीवन बदलता महाराज ने, कौटे राक्षस का जीवन बदल दिता, भूमिए चोर का जीवन बदल दिता, पता नहीं किन्ने का। भाई मंझ देखो, सखी सरवर का उपास, इस तरह भाई साधो, भाई बहलो, ये सारे ही मुसलमान फकीरां दे उपासक सन। उन्होंने पूजा करते सन, दीवा जगाते सन घर में, उन्होंने नाम दीवा जगाते सन। महाराज जी शरण में आ गए तो उन्होंने जीवन ही बदल के रखता है। मंझ प्यारा मोरे को मंझ मारे कहते मंझ तो मेरा, तो मैं जगत को पालने वास्ते वही तो बनाता जहाज बना देता है। जेड़ा मंझ की संगत करेगा वो भी कर देगा। रब दे प्यारे त्रुट के जिथे जीवन को पवित्र करते हैं। देखो चंगे इंसानों की संगत करांगे तो असीं उन्हां को चंगे गुण सिखांगे। उत्तम संगत उत्तम होवे, चंगी संगत करांगे चंगे गुण उन्हां तो मिलणगे। जे माड़ी संगत होवेगी उत्तों सानूं औगण मिलणगे। इस करके महाराज ने संतां दी संगत चंगे इंसानां नूं कहा जांदा। सो अजिहियां दी संगत जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत वंझा मित्र सागड़े से, जिन्हां नूं मिलदियां होइयां जिन्हां दे दर्शन कर साडी खोटी मत दा नाश होवे, वो हन साडे। जिन्हां ने अपने स्वार्थ वास्ते साडी नेड़ता कीती, साडे नाल मित्रता पाई, असीं उन्हां तों की लैणा। सज्जण सही नाल मैं चलदियां नाल चलांगा, जिथे लिखा मंगिया तिथे खड़े सन। सज्जण तो वही है ना, मित्र तो वही है ना, क्योंकि औखी घड़ी आ जाए नाल खड़ जे आंगे। संत खड़ते, गुरु खड़ता है। फिर त्रुट के हरि जस बख्शिश करते हैं। की कहते हैं? वो नाम जपेगा, भलिया तेरा भला हो जू, तेरे परिवार का भला हो जू, जेड़े तेरे संगी हैं उन्हों का भला हो जू। गुण गाया कर, गुरु के गुण गाया कर, बाणी पढ़िया कर। संतां की सिक्ख्या ही है कि हरि जस करया कर, सुनिया कर। पार ब्रह्म करे प्रतिपाला, सत जी संग रखवाला। की एहसास होया संतां की संगत करन दे नाल कि वाहिगुरू परमेश्वर सारियां दी प्रतिपालना कर रहा है।
जान को देत, अजान को देत, जमी को देत, जमा को देत, सब हर थां दे जीवां ने काहे को डोलता है तुमरी सत सुंदर श्री पदमा बदले। क्यों डोलता है? जेड़ा सारे नूं रिज़्क दिंदा है, तेरा भी ख्याल है इस नाम, तेनों भी पालना, तेरी भी करेगा। सदा ही जीवन दे संग है, हर दिन रैन कीर्तन गाइए, भावना जुगनी पाई। जे अजिहे वाहिगुरु परमेश्वर दा जस करिए, कदम रात दिन भाव हर वेले उसका जस करते रहिए, सुनते रहिए। हरि जस कीर्तन का मतलब वाजे बजा के नहीं है, तबला बजे वाजा बजे तां ही कीर्तन। कीर्तन का मतलब गुण गाउण है। बाणी पढ़ते हो प्यार ना पढ़ो, इसनूं गाओ, गाओ सच्ची बाणी, गाओ इसनूं साजां तो बिना ही गाओ, ये कीर्तन है। वो शब्द जिन्हां शब्दां राहीं गुरु दीआं सिफतां कीतीआं हन, संतां दीआं सिफतां कीतीआं हन, संगत दीआं सिफतां कीतीआं हन, रब दीआं सिफतां कीतीआं हन, उन्हां नूं गाओ प्यार दे नाल, प्यार दे नाल ध्यान जोड़ के समझ के गाया करो। की होएगा? मारे कहने भावना जुगनी पाई, जन्म मरण ही मिट जाएगा तेरा। जिस देव है पुरख विधाता, हर रस्ते नहीं जाता है। विधाता साडे भाग लिखण वाला जो है, साडे कर्मां नूं दा फल भुगताउण वाला जो है, उन्होंने विधाता कहा है। जिसनूं संतां दी संगत ते संतां दी संगत दे विच हरि जस करन दा इस जिंदगी च मौका मिल जाता है, सेवा सिमरन करने का मौका मिल जाता है, वो समझो से चंगे भाग, चंगे कर्म पिछले जन्म दे दिन कीते हैं, तां ही अजीब गल हुई है। उन्होंने हरी रस मिलता है। देखो पहला कोई भी चीज़ जिहड़ी है, आप कोई काम कर लगे ना, स्वाद नहीं आता, तो कई अख के आप छड्ड दिंदे हैं, स्वाद जिहा नहीं आ रहा। पढ़न लगो ना, कोई किताब पढ़नी शुरू करो, स्वाद नहीं आ रहा, छड्ड दी, लगे रहो, समा आएगा, उसी चीज़ का रस पैदा होगा। सो जिन्हां ते कृपा होंदी है, महाराज ने हरी रस पीण वास्ते, हरी रस का आनंद मानने वास्ते सानूं जो उपदेश दिता हुआ है, धन धन सतसंग जित हर रस पाए। संगत नाल जे संगत च रस आउण लग पिया, फिर जदों तुसीं कल्ले भी बाणी पढ़ोगे उदों नहीं आएगा। रस की शुरुआत होनी चाहिए है, जे शुरू ही नहीं होता फिर मिलना नहीं, सारी उम्र लग जाएगी। इस करके मारे कहते हैं कि संगत नाल जुड़ जाओ, संगत जो हरी रस तुहानूं मिलेगा। हरी रस केवल ज्ञान ही नहीं मिलता, संगत चों रस मानने वास्ते आप बैठते हैं। ये कथा कीर्तन केवल ज्ञान वास्ते नहीं है, ये रस मानने वास्ते, आनंद मानने वास्ते, बाणी का आनंद मानने वास्ते। जम कंकर नेड़ ना आया, सुख नानक छड़ नहीं पाया। अजिहे रब दे प्यारे जमा का कोई डर नहीं। जमा का डर किहਨਾਂ वास्ते है? जिहड़े उस मालक प्रभु नूं भुल के केवल मोह माया दे विच फसे हैं, उन्हां वास्ते जमा का डर है। ते जिहड़े गुरु के शरण में आ गए, गुरु का आसरा ले लिया, महाराज जी कहते हैं सुन कर जम के दूध नाले तेरा। ये जम भी जिहड़े हैं, जम दूध जिहड़े हैं, ये तो नाम की आवाज़ सुन के पर पा नेड़े नहीं आ सकते। सो आत्मक आनंद, आत्मक रस, केवल आत्मक आनंद ही नहीं, संसार सुख भी सारे मिल जाते हैं। गुरु महाराज समर्थ हैं, संसारी बादशाह का आसरा ले लो तो तुहाडा ये लोक सहेला होएगा, पर लोक नहीं सहलाएगा। पर गुरु महाराज ये लोक सुखिए, पर लोक सुखिए। ऐस लोक नूं सिर पाव, ऐस जीवन दी जिहड़ियां साडीआं लोड़ां हन, उन्हां जरूर पूरीआं करना गुरु महाराज। सुख सानूं ये नहीं होएगा कि इस चीज़ की मैनूं घाट रह गई है, नहीं। पर लोग परमेश्वर को सिमरिया, संगत की, इसका फल
ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਪਾਪ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇੰਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਕਦੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।